اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نابینا افراد کا مطالبات کے حق میں احتجاج 9ویں روز جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر اور نابینا افراد کے درمیان مذاکرات۔ نابینا افراد نے اپنا روٹ پھر سے تبدیل کر دیا۔ نابینا افراد سی ایم ہاؤس کی جانب رواں دواں ہیں، جبکہ نابینا افراد کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا۔ ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کیا جائے، بے روزگار نابینا افراد کو روزگار دیا جائے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کریں گے محمد اسامہ سے۔ اسامہ بتائیے گا۔ اس وقت میں 7 کلب وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر موجود ہوں۔ نابینا افراد کا احتجاج آج 9ویں روز بھی جاری ہے اور اس وقت یہ نابینا افراد کا جو دھرنا ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر موجود ہے۔ اس سے پہلے یہ دھرنا یہاں پنجاب اسمبلی کے باہر موجود تھا، اس سے پہلے لاہور پریس کلب کے باہر انہوں نے احتجاج کیا تھا اور آج 9واں روز ہے ان کے احتجاج کا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر وہ پہنچے ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر 7 کلب کے مقام پر اور ان کا یہاں پر دھرنا جاری ہے۔ نابینا افراد کا اپنے مطالبات کی منظوری تک یہ دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ نابینا افراد کی جانب سے جو مطالبات کیے جا رہے ہیں وہ بے روزگار نابینا افراد کو ملازمتیں دینے کا ہے، جبکہ ڈیلی ویجز نابینا افراد کو ان کی ملازمتیں مستقل بنیادوں پر کی جائے، جبکہ دیگر مطالبات میں ماہانہ 10,000 روپے خصوصی الاؤنس بھی دیا جائے اور اسی طرح ملازمتوں کے فائنینشیل حقوق کے مطالبات ان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ کسی آفیسر کے کہنے پر یہ مذاکرات، کسی آفیسر کے کہنے پر یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا جب تک حتمی طور پر ہمارے مطالبات مکمل طور پر منظور نہیں کیے جاتے۔ یہ دھرنا اور احتجاج جاری رہے گا۔ یاد رہے کہ مسلسل 9ویں روز یہ احتجاج جاری ہے۔ اس سے پہلے گورنر ہاؤس وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر موجود تھا، پنجاب اسمبلی کے باہر یہ دھرنا جاری رہا، پھر اس سے پہلے لاہور پریس کلب میں احتجاج ہوا تھا اور آج ابھی کچھ ہی دیر قبل یہ دھرنا یہاں پر 7 کلب میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر موجود ہے اور نابینا افراد کی بڑی تعداد اس احتجاج میں شریک ہے۔ ان کی جانب سے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ کچھ ہی دیر قبل پولیس اور نابینا افراد کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی تھی، ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی اور شہریوں اور نابینا افراد کے درمیان بھی معاملہ گڑبڑ ہی رہا تھا اور اس کے باوجود یہ احتجاج جاری رہا، جبکہ ان کی طرف سے مطالبات کی منظوری تک یہ دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر قبل ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا گیلانی اور کمشنر لاہور زید بن مقصود نے بھی نابینا افراد سے مذاکرات کی ہیں۔ نابینا افراد کے مطالبات سن کر کمشنر اور ڈپٹی کمشنر تو واپس روانہ ہو چکے، لیکن جو نابینا افراد ہیں وہ اپنے مطالبات کے حق میں۔ یہ بھی بتائیے گا کہ اب سے کچھ دیر قبل ہم نے دیکھا کہ حالات کافی حد تک سنجیدہ ہو چکے تھے، پولیس کی جانب سے ہاتھا پائی کو ملی، اب جبکہ سی ایم پنجاب کی جانب سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ نابینا افراد کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سختی نہ کی جائے، تو حالات کچھ حد تک نارملائز ہوئے ہیں؟ جی بالکل، کچھ دیر قبل پولیس اور جو نابینا افراد ہیں ان کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی، ہاتھا پائی بھی ہوئی، جس میں کچھ پولیس کے اہلکار بھی زخمی ہوئے، جبکہ نابینا افراد کے جو مظاہرین ہیں ان کے بھی کچھ افراد زخمی ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی سی ایم پنجاب کی جانب سے اس بات کا نوٹس دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی سختی نہیں کی جائے گی، ان کو ان کا احتجاج کا حق دیا جائے گا، تو اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ مکمل طور پر کنٹرول میں ہے۔ یہاں پر پولیس کی جانب سے اس دھرنے کو، اس احتجاج کو سیکیورٹی بھی دی جا رہی ہے، جبکہ اس کے بعد جو پولیس اور جو نابینا افراد ہیں ان کے درمیان کوئی ہاتھا پائی یا کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی، جبکہ یہ احتجاج جو ہے وہ مسلسل 9ویں روز جاری ہے اور اس وقت یہ مظاہرین جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر موجود ہیں، دھرنا دیے ہوئے ہیں اور جب تک ان کے مطالبات منظور نہیں کیے جاتے ان کا یہی کہنا ہے کہ اپنے مطالبات کی حتمی منظوری تک اس احتجاج کو جاری رہیں گے۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر کی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، وہ ہمارے مطالبات مانیں تو ہی یہ دھرنا ختم ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی نابینا افراد کی جانب سے گزشتہ مہینوں میں، گزشتہ ادوار میں اسی طرح کے احتجاج اور دھرنے دیے جاتے رہے ہیں، لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں تنخواہ دیا جاتا ہے، ہر بار ہمیں مطالبات کی منظوری کی یقین دہانی کروائی جاتی ہے، لیکن ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے، وعدوں کی پاسداری نہیں کی جاتی اور اسی طرح اب جب تک یہ حتمی طور پر ہمارے ساتھ وعدے نہیں کیے جاتے، ہمارے مطالبات مانے نہیں جاتے، نابینا افراد کے جو روزگار کا مسائل ہیں ان کو حل نہیں کیا جاتا، ڈیلی ویجز کے جو نابینا افراد ہیں ان کی ملازمتیں مستقل نہیں کی جاتی اور خصوصی طور پر جو ان کا ملازمتوں میں کوٹا ہے 3% اس کو بڑھا کر 6% تک نہیں کیا جاتا، ہم یہ دھرنا جاری رکھیں گے، ہمارا
एहतजाज जारी रहेगा और इस वक्त एहतजाज जो है वो 9वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। पुलिस और नाबीना अफराद के दरमियान कुछ ही देर कबल यहाँ पर हाथापाई भी हुई थी, मुजाहिरीन के दरमियान जो है वो भी लड़ाई हुई थी, शहरियों के दरमियान भी तल्ख कलामी हुई थी, लेकिन अब मामला जो है वो मुकम्मल तौर पर लाहौर पुलिस के कंट्रोल में है। पुलिस की जानिब से इस धरने को प्रोटेक्शन भी दी जा रही है, सिक्योरिटी भी दी जा रही है, जबकि अगर यहाँ पर चूँकि ये बिल्कुल माल रोड और मेन शाहरा पर मौजूद है, यहाँ पर सिक्योरिटी और ट्रैफिक की बात की जाए तो ये धरना चूँकि CM हाउस के बाहर मौजूद है, 7 क्लब माल रोड पर मौजूद है, तो इसकी वजह से शहर लाहौर की ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हुई है। शहरियों को मुतबादिल रस्ते इस्तेमाल करने की हिदायत की जा रही है, जबकि जो शहरी माल रोड से गुजर रहे हैं उनको मुतबादिल सर्विस रोड से गुजरने की हिदायत की जा रही है, क्योंकि एक तरफ से ये माल रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ से एक तरफ से शहरियों को गुजरने की परमिशन दी जा रही है। और इस वक्त ये धरना जो है वो CM हाउस के बाहर मौजूद है। नाबीना अफराद के मुतालबात के हक़ में उनकी जानिब से नारेबाजी की जा रही है और बड़ी तादाद में नाबीना अफराद अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज कर रहे हैं, धरने में शरीक हैं, जबकि पुलिस की जानिब से इस धरने को सिक्योरिटी भी दी जा रही है। और अभी कुछ ही देर कबल चूँकि दोनों के दरमियान हाथापाई भी हुई थी, हालात कशीदा हुए थे, लेकिन अब जब CM पंजाब की जानिब से इस मामले का नोटिस दिया गया और ये हिदायत की गई कि किसी किस्म की कोई सख्ती इनके साथ ना बरती जाए, तो हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं। लेकिन नाबीना अफराद का यही कहना है कि जब तक उनके मुतालबात हतमी तौर पर मंजूर नहीं किए जाते, उनका धरना इसी तरह बदस्तूर जारी रहेगा। उनके मुतालबात नहीं माने जाते, क्योंकि किसी भी अफसर के कहने पर यह धरना ख़त्म नहीं किया जाएगा, एहतजाज ख़त्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि माजी में जब भी उनके साथ वादे किए गए, उनका यही कहना है कि माजी में जब हम एहतजाज करते थे या धरने देते थे तो उनके साथ जो वादे किए जाते थे उन वादों की पासदारी नहीं की जाती थी और इसी तरह ये एहतजाज जो है वो ख़त्म करवा दिया जाता था। लेकिन अब किसी ऑफिसर के कहने पर यह एहतजाज नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि कुछ ही देर कबल यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा गिलानी और कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने भी यहाँ पर इनसे मुज़ाकरात किए थे। जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे एहतजाज का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मोहम्मद उसामा सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का नाबीना अफराद के एहतजाज पर नोटिस। नाबीना अफराद से किसी किस्म की सख्ती ना करने की हिदायत की गई है। और आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान को नाबीना अफराद से बातचीत करके मसाइल हल करने का हुक्म भी दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब का नाबीना अफराद के तशद्दुद से ज़ख्मी पुलिस एहलकारों से इजहार हमदर्दी, ख़ुसूसी अफराद हैं, इनके मसाइल का एहसास है, तहम्मुल का मुजाहिरा करें। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस को हिदायत। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का नाबीना अफराद के एहतजाज पर नोटिस। नाबीना अफराद से किसी किस्म की सख्ती ना करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान को नाबीना अफराद से बातचीत करके मसाइल हल करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब का नाबीना अफराद के तशद्दुद से ज़ख्मी पुलिस एहलकारों से इजहार हमदर्दी किया गया है और कहा गया कि ख़ुसूसी अफराद हैं, उनके मसाइल का भी एहसास है, तो तहम्मुल का मुजाहिरा किया जाए। और वज़ीर आला पंजाब पुलिस को ये हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का नाबीना अफराद के एहतजाज पर नोटिस ले लिया गया है। नाबीना अफराद से किसी किस्म की कोई भी सख्ती ना करने की हिदायत जारी की गई हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान को नाबीना अफराद से बातचीत करके मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब का नाबीना अफराद के तशद्दुद से ज़ख्मी पुलिस एहलकारों से इजहार हमदर्दी कर दिया गया है। महारोड पर नाबीना अफराद के एहतजाज का ये मामला है। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का कहना है कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात यकीनी बना रही है। हम 9 दिन से उनके साथ हैं। हमें हुकूमत की तरफ से हिदायत है कि उन पर सख्ती नहीं करनी। हम इसको डील कर रहे हैं, 9वां दिन है आज। मेरी कोशिश ये होगी कि ये विजुअली इम्पेयर्ड लोग जितने हैं हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनकी डिमांड्स गवर्नमेंट उसके लिए जो भी काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर मैं इंशाल्लाह मेंटेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पे सख्ती इनके साथ हम कोशिश करेंगे ना। डेंगू के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत टेक्निकल वर्किंग ग्रुप का इजलास हुआ है। सूबे भर में डेंगू की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था कि डेंगू पर काबू पाने के लिए फील्ड अफसरान को दफातर से निकल कर काम करना होगा और रावलपिंडी में हस्पतालों में डेंगू मरीजों के इलाज का बंदोबस्त किया जा रहा है। और इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बताइए बिलाल। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी ने डेंगू के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में टेक्निकल वर्किंग ग्रुप का हंगामी इजलास तलब किया।
जिसमें सूबाई वज़ीर सिंध ख्वाजा इमरान नज़ीर ने वीडियो लिंक की, जबकि मशीर सिंध मेजर जनरल रिटायर्ड असद महमूद क्यानी ने महकमा सेहत से इजलास में शिरकत की, जबकि ख्वाजा सलमान रफीक ने इजलास के दौरान सूबा भर में डेंगू की ताज़ा सूरत हाल का जायजा भी लिया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सिंध ख्वाजा सलमान रफीक का ये कहना था कि टेक्निकल वर्किंग ग्रुप रावलपिंडी में डेंगू के बायस अमवात और जेर इलाज मरीजों में मर्ज की शिद्दत की वजूहात का फौरी तयन कर रहे हैं, जबकि डेंगू पर काबू पाने के लिए फील्ड अफसरान को दफातर से निकल कर अब काम करना होगा। रावलपिंडी में सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में डेंगू मरीजों के इलाज का बंदोबस्त किया जा रहा है, जबकि मुतल्लिका अफसरान डेंगू के हर केस को ट्रैक करें। इस हवाले से सूबाई वज़ीर सिंध ख्वाजा इमरान नज़ीर का ये कहना था कि डेंगू जानलेवा नहीं, अस्पताल लेट रिपोर्ट करने पर खतरनाक हो सकता है, और इसके साथ साथ महकमा सेहत जो है तमाम जो मुमकिन इकदाम है ये भी कर रहा है, और डेंगू का सीजन अरूज पे है, मुतासर मरीजों की निगरानी पर कोई समझौता नहीं होगा। यूनियन कौंसिल सतह पर इन सारे डेंगू सरगर्मियों में मुंतखब नुमाइंदों की शमूलियत को यकीनी बनाएंगे और डेंगू से अमवात का ऑडिट कराया जाए ताकि असल वजूहात का पता चल सके। जी बहुत शुक्रिया बिलाल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल कमी, पेट्रोल और डीजल की नई कीमत पर फरोख्त जारी है। पेट्रोल के नर्ख में 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर कमी की गई है। अवाम कहते हैं बेहतर फैसला है, ताहम पेट्रोल और डीजल के नर्खों में मजीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल कमी। ओगरा फार्मूले के मुताबिक पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे कमी से 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 40 पैसे सस्ता होकर 246 रुपये 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर। इसी तरह लाइट स्पीड डीजल 1 रुपये 3 पैसे कमी से 140 रुपये 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर किया गया है। मट्टी का तेल 3 रुपये 57 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत पर 1 अक्टूबर रात 12 बजे से अमल दरामद भी शुरू हो गया है। अवाम कहते हैं पेट्रोल और डीजल मुसलसल सस्ता हो रहा है। अच्छी बात है, लेकिन आम आदमी के लिए ताहाल इसकी खरीदारी जेब पर भी भारी है। वो पे सस्ता कर दिया, लेकिन इससे इतना रिलीफ नहीं मिला आवाम को। जो पहले 150 रुपये था, 70 रुपये था, 100 रुपये हुआ है। तो महंगाई, किराए वैसे ही हैं, बसों के किराए, वो ट्रेनों के किराए उतने ही हैं। तो कम से कम ये 100 रुपये रिलीफ दें तो फिर तो कुछ आवाम को फ़र्क पड़े। हमारी दुआ है कि पेट्रोल और कम हो। हम जाते हैं तकरीबन पेट्रोल डालते हैं, हमें भी फायदा हो। बहुत अच्छा होया है जी, माशाल्लाह। बहुत अच्छे दिन होर ज़्यादा सस्ता हो जाए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। इन्हें गरीब आवाम में पेट्रोल किमें पा सकती है। ओगरा ज़राए के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल के नर्ख में मुसलसल कमी हो रही है, जिस वजह से मुकामी मार्केट में भी नर्ख कम हो रहे हैं। ताहम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी बदस्तूर 60 रुपये फी लीटर जारी है। 1 जून से 1 अक्टूबर तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 21 रुपये 23 पैसे, जबकि डीजल में 18 रुपये 67 पैसे की कमी की गई है। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़।